Hello students, this is Abhilash here from Vedantu, your master teacher in chemistry, and we are continuing with our series on ionic equilibrium. This is our third part in the series, and today we are going to look at polyprotic acids and bases, right? Again, let me clarify, in first session we had looked at basics related to ionic equilibrium. We had looked at monoprotic, simple weak acids ka case in the first video in the series. In the second video in the series, which I recorded like 5 minutes ago, we had looked at the mixture of different kind of weak acids and strong acids and stuff. Now what we are going to go into is polyprotic weak acids. Polyprotic weak acids mein how do you calculate pH and how do you calculate the concentration of different ions is what we are going to deal with in this particular topic, right? So once again, when we are looking at polyprotic acids in the second video of the series, we had looked at one example where we added strong acid HCl with a weak acid H2S and we had calculated the pH there. So I had already introduced little bit about polyprotic acids in that, right? I'm going to go into that a little bit more deeper here so that all the steps are looked at and we have a better clarity here, right? So let's say that we have a weak diprotic acid H2A and whose concentration is some C molar, right? Now diprotic acid is one which is capable of giving out 2 protons in water, 2 H plus in water, and in this aqueous solution following 2 equilibria exist. The first equilibrium is H2A dissociating to give you HA minus and H plus, and the second equilibrium is this HA minus dissociating to give you A2 minus and H plus. अब आपका H2A का कंसेंट्रेशन क्या होगा? C2 into 1 minus alpha 1. alpha 1 क्या है? फर्स्ट डिसोसिएशन का डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड HA माइनस जो मिलेगा वो C alpha 1 होगा, H प्लस भी जो मिलेगा वो C alpha 1 होगा. दैट इज फ्रॉम फर्स्ट डिसोसिएशन अलोन. बट what happens is this HA minus is going to dissociate now with second degree of dissociation alpha 2. तो ये होगा C alpha 1 into C alpha 1 जो कि उसका concentration होना चाहिए था into 1 minus alpha 2. अब ये दोनों एक ही solution में है तो दोनों जगह पे same concentration लिखना पड़ेगा, तो ऊपर भी into 1 minus alpha 2 लिख लिया, नीचे भी लिख लिया. इससे कंट्रीब्यूशन जो आएगा सेकंड से वो होगा C alpha 1 into alpha 2. तो वो C alpha 1 alpha 2 यहाँ पे मैंने लिखा है और ये ऊपर भी ऐड किया once again because ये दोनों साइमल्टेनियसली एक ही सॉल्यूशन में ही पड़ा हुआ है. तो टोटल H प्लस is C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2 where C alpha 1 is contribution from first dissociation, C alpha 1 alpha 2 is contribution from second dissociation. अब ये second dissociation वाला आप नॉर्मली इग्नोर मार सकते हो. क्यों? क्योंकि Ka2 वैल्यू जो इसका इस डिसोसिएशन के लिए Ka1 बोलते हैं, इस डिसोसिएशन का कांस्टेंट जो है Ka2 होता है, और Ka2 is normally going to be significantly smaller than Ka1. I have already explained in the last video. Why? Because ये आपको दूसरे वाले में H plus जो हटाना है वो HA minus से हटाना है, which is a negative ion, and it is obviously going to resist the removal of H plus. So it's more difficult, which means that this Ka2 is going to be significantly smaller than Ka1. Automatically what that tells you is contribution of H plus from the second equation is going to be, second dissociation is going to be significantly lower than the contribution from first. तो normally अगर आपको pH alone calculate करना है, H plus alone calculate करना है, तो ignore the second dissociation, calculate H plus from the first one, approximate your diprotic acid to be a monoprotic acid with Ka as Ka1 of this diprotic acid, and you can say that root Ka1C will be your H plus ka total concentration, right? Yeah, where alpha 1 is the degree of dissociation, first degree of dissociation, and alpha 2 is the second degree of dissociation in presence of each other, right? In presence of each other मतलब यहाँ पे ये पहले वाले का जो H plus आ रहा है वो दूसरे वाले के dissociation को कम करेगा, right? तो अगर HA minus alone आपके पास होता तो उससे जो H plus मिलता उससे कम मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि H plus पहले वाले से आ रहा है जो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से पीछे की तरफ पुश करने वाला है इसको, और सिमिलरली इसका H plus इसका भी अल्फा कम कर रहा है, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि H प्लस का कंट्रीब्यूशन बहुत कम आने वाला है. वी ऑलरेडी नो दिस, राइट? गोइंग फर्दर, for the first equilibrium, if I write Ka1 should be equal to H plus into HA minus divided by H2A. ठीक है, अब ये Ka1 आया C1 alpha 1 plus C2, ये जो है C1 alpha 1 plus C1
सी अल्फा 1 अल्फा 2 जो है H प्लस का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटू सी अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा 1 होना चाहिए था. अब द थिंग इज दैट वी कैन इग्नोर 1 माइनस अल्फा 2. Why? Because alpha 2 is going to be significantly smaller than alpha 1. Similarly, ये C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2 जो लिखा हुआ है इसको आप C alpha 1 into 1 plus alpha 2 लिख सकते हो. 1 plus alpha 2 भी negligible है, approximately 1 नहीं मान सकते हो. तो आपका C alpha 1 नहीं है, more or less आपका H plus और C alpha 1 नहीं है, HA माइनस बी और H2A आया C into 1 माइनस alpha 1. राइट. तो आपका सेकेंड इक्वेशन के लिए आप लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू Ka2 शुड बी H प्लस इंटू A2 माइनस डिवाइडेड बाय HA माइनस. अब व्हाट डिड वी से इन दिस फर्स्ट थिंगी कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, H प्लस और HA माइनस ऑलमोस्ट सेम है. एक क्या है C alpha 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2, ये क्या है C alpha 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2. बट अल्फा 2 तो बहुत छोटा होने वाला है, तो 1 प्लस अल्फा 1 और 1 प्लस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 2 ऑलमोस्ट सेम बात हो गई. तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है. राइट. या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि H प्लस जितना आ रहा है मोरलेस फर्स्ट से ही आ रहा है, तो जितना H प्लस है उतना ही HA माइनस भी है. राइट. तो आपका ये H प्लस और HA माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो ईजिएस्ट आयन जिसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है वो हमेशा सेकेंड एनायन, ये जो A2 माइनस होता है हमेशा, ट्राइप्रोटिक भी हो तो भी सेम ही आएगा क्योंकि H प्लस और HA माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो A2 माइनस का कंसंट्रेशन सीधा आया Ka2. क्लियर है. तो Ka2 विल बी इक्वल टू, अब ये दोनों को बेसिकली अपन कैंसिल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इट इज इक्वल टू योर A2 माइनस का कंसंट्रेशन. A2 माइनस है कितना, ये अल्फा 1 अल्फा 2 है, विच शुड बी इक्वल टू Ka2 डायरेक्टली. राइट. Yeah. Now after getting the values of alpha 1 and alpha 2, H plus can be calculated. Total H plus आप calculate कर सकते हो. Mind you, this is normally not going to be needed. Normally आप ये C alpha 1 पे ही game over कर दोगे क्योंकि second dissociation से उतना contribution नहीं आने वाला है. We can approximate it and we can keep it in our mind, right? So diprotic acids के लिए Ka2 is much less than Ka1. अब हाँ, एक चीज और, ये सेम सिचुएशन में इफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस फ्रॉम दिस एसिड अलोन इज लेस देन 10 to the power minus 6, we will also have to take into consideration H plus coming from H2O. We have already heard of this before. आपको H plus नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 10 to the power minus 7 के आसपास तो H2O से ही आता है, तो आपको देखना पड़ेगा 10 to the power minus 6 या उससे कम आ रहा है तो फिर consider water also to be a contributor, right? We have already seen this in video 1. You can go through it if you have any doubts, right? Yeah. So what we are eventually seeing is that C alpha 1 into C alpha 1 divided by C into 1 minus alpha 1 is equal to Ka1. ठीक है, ड्यू टू अप्रोक्सीमेशंस, विच मीन्स दैट योर मोनोप्रोटिक एसिड का ही सेम टाइप का एक्सप्रेशन आया डाइप्रोटिक में भी. तो आप ये अप्रोक्सीमेट कर सकते हो. अगर आपको H प्लस अलोन कैलकुलेट करना है तो इग्नोर सेकेंड डिसोसिएशन, यू कैन डायरेक्टली यूज रूट Ka1C एज योर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. अगेन एक बार चेक कर लेना. क्या चेक करोगे? जो मोनोप्रोटिक में भी मैंने बोला था, रूट Ka1/C एक बार कैलकुलेट कर लेना. अगर ये 0.1 से नीचे है तो सब अप्रोक्सीमेशन सही है, अगर नहीं है तो फिर वही क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व करके आपको अल्फा का वैल्यू, अल्फा 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन वीडियो 1, फर्स्ट वीडियो, यू कैन गो थ्रू दैट, राइट. एग्जाम्पल, find the pH and find HS minus का concentration, H2 minus का concentration, alpha 1 and alpha 2 in a 0.1 molar H2S solution, right? अब Ka1 Ka2 दिया हुआ है 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 14 दिख रहा है. Ka2 बहुत कम होगा compared to Ka1, right? Now the two equilibria are H2S giving you HS minus plus H plus and HS minus giving you H2 minus plus H plus. ये same equilibrium concentration वाले सारे हमने पहले भी देखा हुआ ही है, तो I'm not going back to it. C is 0.1 molar here, which is the concentration of H2S. Alpha 1 and alpha 2 are pretty small values. We already know this. Stand alone अगर एक weak acid की तरह, मोनोप्रोटिक वीक एसिड की तरह लेते तो अल्फा आता रूट Ka1/C, जो कि खुद 10 to the power minus 3 के रेंज में है, उससे भी कम आने वाला है यहाँ पे. तो ये अप्रोक्सीमेशन जहाँ जहाँ हो सके 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, ये सबको 1 ले सकते हैं. ये है अपना अप फ्रंट आइडिया, राइट. अब HS माइनस और H प्लस अप्रोक्सीमेटली सेम होगा. कितना? ये C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 है और ये C अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 है, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली C अल्फा 1 ही है, तो C अल्फा 1 अप्रोक्सीमेशन आ गया. HS माइनस H प्लस दोनों अप्रोक्सीमेटली C अल्फा 1 है.
S2 माइनस आएगा सी अल्फा 1 अल्फा 2, राइट। और मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है आपको S2 माइनस डायरेक्टली आप लिख सकते हो Ka2 है, तो दैट इज द इजीएस्ट पार्ट टू हैंडल हियर। यू कैन डायरेक्टली से S2 माइनस विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 14, राइट। बट या विल स्टिल या सो कमिंग बैक टू दिस S2 माइनस आपको पता ही है, डायरेक्टली आप इक्वेट कर सकते हो Ka2 के साथ, तो यू कैन से दैट S2 माइनस विल बी इक्वल टू सी अल्फा 1 अल्फा 2, which is equal to Ka2 तो 10 to the power minus 14। Now alpha 1 चाहिए आपको, तो alpha 1 आया रूट Ka1 by C, मैंने बोला था मोनोप्रोटिक के जैसे ही, तो ये आया 10 to the power minus 3, और H प्लस और HS माइनस दोनों का कंसेंट्रेशन है C alpha 1, तो ये 0.1 इंटू 10 to the power minus 3 मतलब 10 to the power minus 4 हो गया, तो pH आ गया आपके पास 4। दूसरे इक्विलिब्रियम में वी हैव ऑलरेडी सीन दिस बिफोर, H प्लस HS माइनस कैंसिल होगा, S2 माइनस डायरेक्टली Ka2 जितना ही होगा, तो 10 to the power minus 14 आ गया उसका वैल्यू। अल्फा 2 अगर पूछे तो अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 कहां से आएगा, C अल्फा 1 अल्फा 2 है आपका S2 माइनस, और C अल्फा 1 है H प्लस, तो 10 to the power minus 14 डिवाइड अप बाय 10 to the power minus 4 जो कि आपका H प्लस है, C अल्फा 1 जो है, C अल्फा 1 अल्फा 2 डिवाइड बाय C अल्फा 1 करोगे तो अल्फा 2 आएगा, दैट इज आवर आइडिया। तो C अल्फा 1 अल्फा 2 डायरेक्टली पता है 10 to the power minus 14 है, डिवाइड अप बाय 10 to the power minus 4 किया तो 10 to the power minus 10 आया आपका अल्फा 2 का वैल्यू। अगेन इट इज परफेक्टली फाइन विद आवर अप्रोक्सीमेशन, पहले से ही जो करके बैठे हुए हैं कि अल्फा 2 तो बहुत छोटा आएगा, अल्फा 1 तो 10 to the power minus 3 था, अल्फा 2 10 to the power minus 10 है, तो ऑल आवर अप्रोक्सीमेशंस आर वैलिड हियर। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। नाउ ट्राइप्रोटिक एसिड, अब ट्राइप्रोटिक एसिड में आपके पास 3 डिसोसिएशन इक्विलिब्रिया है, राइट। ये सब में अब पहले वाले से जो H प्लस आ रहा है उसकी वजह से दूसरा डिसोसिएशन कम होगा, दूसरे वाले और पहले वाले में जो H प्लस आ रहा है उसकी वजह से तीसरे वाला डिसोसिएशन भी कम होगा। पर्टिकुलरली वी हैव ऑलरेडी सीन दिस बिफोर कि Ka1 से बहुत छोटा होगा Ka2, Ka2 से और बहुत छोटा होगा Ka3, तो अल्फा 1 से बहुत छोटा होगा अल्फा 2, अल्फा 2 से भी बहुत छोटा होगा अल्फा 3, तो जो जो अप्रोक्सीमेशन अपन कर सकते हैं वो सब अपन यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले में जो डिसोसिएशन से H प्लस आ रहा है मोर और लेस वो पूरा का पूरा H प्लस जो सॉल्यूशन में है वो फर्स्ट से ही आ रहा है, ये आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इंडिविजुअली ये एक्सप्रेशन बनाना तो आपको दिख गया होगा, C अल्फा 1 पहले वाले से आ रहा है C अल्फा 1, दूसरे वाले से क्या आएगा, अब वो C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 दूसरे में डिसोसिएशन में आएगा, C अल्फा 1 अल्फा 2 इधर दोनों में आएगा, C अल्फा 1 अल्फा 2 जो लिखा हुआ है वो दूसरे वाले से कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली C अल्फा 1 अल्फा 2 जो बना 1 माइनस अल्फा 3 ओके अल्फा 3 से डिसोसिएट होगा, तो C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीसरे का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब हर जगह लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही सोल्यूशन के अंदर सब पड़ा हुआ है, राइट। तो पहले वाले इक्वेशन से कॉन्ट्रीब्यूशन है C अल्फा 1, दूसरे वाले से है C अल्फा 1 अल्फा 2 और तीसरे वाले से C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, राइट। H प्लस के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात हो रही है। नाउ H2A minus and H plus is approximately equal. We have already seen this before. Monoprotic, diprotic जैसे भी हो, triprotic आपका इन दोनों का concentration almost equal आएगा, क्योंकि what we are indirectly saying is further dissociation तो बहुत कम होने वाला है, तो ये almost ये दोनों तो equal रहेंगे और both of these are equal to C alpha 1. That is what we are saying. अब similar to monoprotic acid I have already told you, and alpha 1 will be equal to root Ka1 by C just like in a monoprotic, and Ha2 minus I have already told you second anion का concentration calculate करना सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि Ka2 will be equal to this into this divided by that, और ये H प्लस और H2A माइनस ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा Ka2 इक्वल टू Ha2 माइनस। तो easiest to calculate is always Ha2 माइनस द सेकेंड एनायन विच विल बी इक्वल टू C अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा 3 है, बट अगेन अल्फा 3 बहुत ही कम होने वाला है, तो C अल्फा 1 अल्फा 2 ही बोलो, बेटर स्टिल Ka2 सीधा बोल दो, राइट। थर्ड वाले की अगर बात करें A3 माइनस के पीछे अगर जाना है तो हाँ, तो दिस इज व्हाट आई वाज ऑलरेडी टेलिंग यू अबाउट, Ka2 में ये दोनों टर्म तो कटने वाला है, H प्लस और H2A माइनस, बचेगा बस Ha2 माइनस, तो Ha2 माइनस और Ka2 इक्वल होंगे। थर्ड वाले डिसोसिएशन में क्या होगा, A3 माइनस इंटू H प्लस अपॉन Ha2 माइनस है आपका Ka3 का वैल्यू, बहुत छोटा है नो डाउट। A3 माइनस अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले आओ, H प्लस को इधर ले आओ, तो आएगा आपके पास A3 माइनस इज इक्वल टू Ka3 इंटू Ha2 माइनस जो कि Ka2 है डिवाइड अप बाय H प्लस कितना है रूट Ka1C, तो आपका A3 माइनस का कंसेंट्रेशन आएगा Ka3 Ka2 डिवाइड अप बाय रूट Ka1C।
right? So all the three expressions are written here if you want to remember that directly, right? तो क्या क्या होंगे आपके पास? H प्लस H2A माइनस जो कि इक्वल है HA2 माइनस जो कि KA2 है और A3 माइनस जो कि आपका आएगा KA2 KA3 डिवाइडेड बाय रूट K1C, right? Going further, let's look at an example before we end this topic on pure polyprotic weak acids, right? So here what they have said is calculate the concentration of H2PO4 minus HPO42 minus, ये HPO42 minus था sorry, PO43 minus H plus PH OH minus, OH minus के लिए क्या करोगे याद रखना KW डिवाइडेड बाय H प्लस कैलकुलेट करो इंडिपेंडेंटली KW बाय इसे, उसको ऑल्टरनेटिवली क्या भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, तो जितना OH माइनस है उतना H प्लस पानी से भी आ रहा होगा, राइट? हाँ, तो एंड व्हाट एल्स इज गिवन K2 K1 K2 K3, हाँ K1 इज 10 टू पावर माइनस 3, ये K1 है सॉरी, K2 इज 10 टू पावर माइनस 7 एंड K3 इज गिवन एज 10 टू पावर माइनस 12. दिख रहा है काफी छोटा है उससे K2 और काफी छोटा है K3 K2 से, राइट? अब H3PO4 की अगर बात करें तो 0.1 माइनस एक्स मतलब इंटू 1 माइनस अल्फा भी कर सकते थे, बट या लेट्स से 0.1 माइनस एक्स है अगर H3PO4 तो x और x मिला होगा. अब ये इसमें व्हाट डिड आई डू, आई नेग्लेक्टेड ऑल दी further dissociation. If I just want to calculate H plus and pH, then why go to second and third dissociation? We have already directly concluded. अब ये सारे फॉर्मूला तो पता ही है, बाकी सारे आयंस का भी. तो आपका x into x डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स आएगा Ka1 जो कि 10 टू पावर माइनस 3 दिया हुआ है. सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू जो है 0.01 आ गया, राइट? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आएगा. अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो कि x का वैल्यू मतलब छोटा ही आने वाला है, काफी सिग्निफिकेंटली छोटा आने वाला है. रूट K1 बाई सी भी कर लो एक बार, 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.1 मतलब 10 टू पावर माइनस 2 का रूट मतलब अल्फा 0.1 होता, राइट? बट उससे कम आने वाला है, हमें पता ही है, सेकंड और थर्ड की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये वीक एसिड वाला रूट K/C वाला जो अल्फा है उससे कम आने वाला है. तो 0.1 से कम है तो अपना अप्रोक्सीमेशन वैलिड है. तो ये 0.1 माइनस एक्स को 0.1 नहीं ले लो तो 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आया 10 टू पावर माइनस 4, एक्स स्क्वायर इज 10 टू पावर माइनस 4, एक्स आया 0.01, राइट? अब ये x क्या है, H प्लस ही है, राइट? बाकी दोनों डिसोसिएशन से जो H प्लस आ रहा है उसको अपन अपफ्रंट नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो H प्लस आया 0.01 तो pH आ गया आपके पास 2, बाकी H2PO4 माइनस और ये दोनों सेम ही है पता ही है, तो ये भी आ गया 0.01 H2PO4 माइनस. अब HPO42 माइनस इजीएस्ट टू कैलकुलेट है, सीधा देख के बोल दो Ka2 का वैल्यू ही होगा 10 टू पावर माइनस 7 मोलर, सीधा ही आ गया. अब Ka3 यूज करके अपन PO43 माइनस निकाल सकते हैं. तो Ka3 का एक्सप्रेशन क्या है, H प्लस इंटू PO43 माइनस डिवाइडेड बाई HPO42 माइनस. इसमें Ka3 मालूम है 10 टू पावर माइनस 12 है, H प्लस मालूम है 10 टू पावर माइनस 2 है, HPO42 माइनस मालूम है Ka2 है जो कि 10 टू पावर माइनस 7 है. तो PO43 माइनस आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 टू पावर माइनस 17 मोलर. तो दिख रहा है आपको इनडायरेक्टली कि H प्लस का कंट्रीब्यूशन पहले वाले से 0.01 है 10 टू पावर माइनस 2 है, दूसरे वाले से 10 टू पावर माइनस 7 है क्योंकि HPO42 माइनस और H प्लस कमिंग फ्रॉम द सेकेंड डिसोसिएशन तो सेम ही होगा. तीसरे वाले से जो H प्लस आ रहा है वो 10 टू पावर माइनस 17 है, तो हमने कोई गलत अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, चलेगा, राइट? तीसरे वाले से बहुत कम आ रहा है. तो ओनली H प्लस दैट वी टेक इनटू अकाउंट इज द फर्स्ट डिसोसिएशन का 0.01 मोलर. नाउ OH माइनस कहां से आया, KW डिवाइडेड बाय H प्लस से, तो ये आया आपके पास 10 टू पावर माइनस 12 मोलर. तो H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 12 मोलर, राइट? तो या सो दैट काइंड ऑफ एंड्स आर सिंपल, like as long as there is no other strong acid or weak acid mixed along with your polyprotic acids, you can handle them in this kind of a way. I hope this was clear. We will going ahead after I'm going on a short break. After that, when I come back, I'll be continuing with salt hydrolysis first, and then I think I'll go to buffers and indicators and titration.
right? So we'll be looking at that part, and the last part probably in this chapter will be related to solubility. Again, I need your suggestion whether we should go, I mean when you're going into solubility or for example buffer wala ya titration wala part, whether we should go to an advanced level or not. That is something that you will have to tell me, right? Kyunki mains level is what a lot of students have written in the comments ki mains level tak rakho, mains ke pehle khatam karo और उतना तक की रखो, एडवांस के लिए बाद में देखेंगे. तो आई डोंट नो, बट एडवांस के लिए सेपरेट टाइम मिलेगा, आई डोंट नो. सो लेट्स सी, एज मच एज पॉसिबल वी कैन गो टू as much depth as we can possibly do it in this like short sessions that we have, and that's it. We from Vedantu have this series for you so that we can tackle some of the commonly asked doubts from different chapters. Once again, the whole chapter is not what we are dealing with here, so I can't go in that depth and I can't go to that many examples as many of you have suggested in the comments. But yeah, we will try to cover as many things as possible that are common doubts, right? So at least for a mains level you would be super prepared, and that is our aim at Vedantu, right? So we want to like eliminate this thingy where you are paying out a lot of coaching tuition fees and all that, where nobody cares about whether you are studying or not. I have taught in like coaching classes, right? I have been in a physical coaching class for almost 10 years, right? Whatever effort I put in from my end, at times students are not exactly in the mood or frame of mind to like, you know, grasp everything taught in class. They are tired, they have like school exams, they have like school assignments, so it gets very difficult. So something like Vedantu is our a novel idea. This is the first company and like the you know the biggest company and the most technically advanced company in this domain, where we are trying to make education a much more better experience for you, right? We have our patented technology through which we track your studying pattern, right? So we understand whether you are understanding or not when we teach, which is not something that happens in a class, which is something that we have to gauge looking at the face of a kid normally, but this is going to be done in a technologically equipped kind of a way this time around. If you like Vedantu, do subscribe to our channel, like this video, and like keep asking us for more and more things, because whatever you ask is what we'll deliver, and that is what keeps us happy, right? Best of luck to everybody who is preparing, and cheers.